So in last lecture, we saw what is diabetes mellitus, normal anatomy of pancreas, blood vessels, structure of hormone, regulation of insulin, glucagon hormone, how they basically secreted and how they perform their function. ये हम लोगों ने already देख लिया है, right? We also saw the metabolism of the glucose. Okay, glycogenosis क्या है, glycogenesis क्या है, glycogenolysis क्या है, gluconeogenesis क्या है, ये हम लोगों ने already देख लिया है, right? So we already saw the glucoregulation, regulation of the glucose metabolism या glucose को regulate कैसे हम लोगों ने देखा है, right? So to maintain the steady level of the glucose in the body, we need one hormone, right? That is called insulin. And along with the insulin, glucagon also play the role to maintain the steady level of glucose inside your body. Maintenance of the steady level is called hemostasis. Okay, hemostasis is not only related to the blood, anything which we can maintain, that is called hemostasis. And who play an important role for this hemostasis or maintenance of the steady glucose level? There is one hormone which is secreted by beta cell of that is called islets of Langerhans in pancreas, and that hormone is called insulin. So insulin is a primary regulatory hormone. So which hormone is a primary regulatory hormone for the glucose level inside the blood of human being? That is the insulin. And you already know who secreted the insulin in human being? Beta cell. We already saw in anatomy class of this particular endocrine chapter or endocrine unit में हम लोगों ने start में already देख लिया है. There is one more hormone along with the insulin, like alpha cell. Alpha cell secrete, I will use different color. Alpha cell secrete, okay, glucagon. What is the hormone name? Okay, insulin and glucagon. Insulin secreted by beta cell and alpha cell secrete the glucagon. They have opposite effect that of insulin. So insulin का effect जो है उसके exact opposite या antagonist भी हम लोग बोलते हैं. कौन सा है तुम्हारा? That is called the glucagon. So this is how with the help of these two hormone, there is one more cell, alpha cell है, beta cell है, delta cell है. Okay, delta cell secrete somatostatin. सोमा मीन्स सेल, स्टैटिन मीन्स बैलेंस. सोमेटोस्टैटिन क्या करता है? ग्लूकागॉन और इंसुलिन का सिक्रीशन स्टेबल रखता है, राइट? एक तो किसी को एकदम से पीक पर और किसी को एकदम नीचे नहीं करेगा. स्टेबिलिटी इज मेंटेन बाय डेल्टा सेल एंड दैट इज कॉल्ड सोमेटोस्टैटिन. देयर इज वन मोर सेल लाइक अ गामा लाइक सेल, वो प्रीकसर है. अगर ये सेल का अगर डैमेज हो गया तो नए सेल बनते हैं, राइट? सो usually when you go through the book you saw three type of cell: alpha cell, beta cell and delta cell. But there is one more like a gamma like cell. This cell, they are precursor of this beta cell. यानी जैसे सेल है तो सेल डेथ होगा ना, नया सेल तो चाहिए. So this particular gamma cell, it is but a precursor of alpha beta, वो नए बनाते, right? So this glucoregulation or regulation of the glucose, it is very important to understand. Okay, sometime the stored basically glycogen, like stored glucose, जो glucose molecule store होके liver में glycogen बनाते हैं, right? So sometime it will be converted into glucose in case of emergency. जब हम लोग खाना खाने के बाद हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होके ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेंगे और फिर वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्टोर हो जाएंगे, राइट? सो दे स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. सो दिस स्टोर्ड ग्लाइकोजन also converted into glucose and again it will be released into the blood. लिवर में you can convert glycogen into glucose. और कहाँ स्टोर होता है? ओके, मसल में. Muscle in which the glucose is stored in the form of glycogen in muscle lack the ability to export the glucose. ये एक्सपोर्ट नहीं कर सकता ग्लूकोज को बाहर. यानी समझ लो आपको अगर ग्लूकोज चाहिए, आप फास्टिंग पे हो, आप कुछ कार्बोहाइड्रेट खा नहीं रहे हो, राइट? देयर इज नो कार्बोहाइड्रेट, आपको ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा? तो आपके लीवर में जितना स्टोर्ड ग्लूकोज है वो फोर्स्ड ग्लाइकोजन लाइसिस में जाएगा. ग्लाइकोजन विल ब्रेक डाउन इनटू द ग्लूकोज. या समझ लो ये बड़ा मॉलिक्यूल है, स्टोर्ड मॉलिक्यूल है ग्लाइकोजन का, राइट? दिस ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल विच इज अ पॉलीसैकेराइड है, ये ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल विल बी ब्रेक डाउन इनटू द दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल. और ये ब्लड सर्कुलेशन में से निकलेगा बाहर, किसमें? दैट इज इनसाइड द बॉडी, और ये बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा. ये हो गया लीवर का स्टोर्ड.
लेकिन मसल में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, जो आपका ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, वी कैनॉट, और मसल कैनॉट एक्सपोर्ट, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन में नहीं आएगा. मसल लाइक द एबिलिटी टू एक्सपोर्ट द ग्लूकोज इनटू द ब्लड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. मसल में एबिलिटी नहीं है. हाँ, ब्रेक होगा, मसल में यूज होता है मसल में, राइट, बट मसल में ये एबिलिटी नहीं होता कि वो ब्रेक करके सप्लाई करे या एक्सपोर्ट करे. लीवर में रहेगा, फोर्स ग्लाइकोजन लाइसिस होगा लीवर में. Now there is one more hormone that is called glucagon. Okay, the more amount of glucagon is by low level of glucose. Okay, जैसे ही ये ग्लूकागॉन जो है इसका लेवल जैसे बढ़ता है, राइट, इसका जो रिलीज होता है ये कैसे होता है, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, राइट. ग्लूकागॉन कब बढ़ेगा, जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा. इसका मतलब आपके ब्लड में ग्लूकोज नहीं है तो कौन बढ़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड ग्लूकागॉन बढ़ जाएगा, राइट. ग्लूकागॉन जैसे ही बढ़ेगा, ओके, द ग्लाइकोजन स्टोरेज ब्रेक डाउन इनटू द ग्लूकोज एंड दैट ग्लूकोज कम इनटू द ब्लड सर्कुलेशन. वहां से हर सेल को मिलेगा, मसल से तो आ नहीं सकता, या हो सकता है आपका सर्टाइटरी सेंटर स्टिमुलेट होकर आप खाना खा लोगे और ग्लूकोज मिल जाएगा आपके बॉडी के, राइट. बट ये कब होगा, जब आपके ब्लड में ये नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं होगा. ओके, सो ये हो गया ग्लाइकोजन का स्टिमुलेशन. आपको याद रखना है, ग्लाइकोजन कब स्टिमुलेट होगा सिक्रीशन, जब ब्लड में का ग्लूकोज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, जब ब्लड में का ग्लूकोज कम हो जाएगा. लो लेवल ऑफ द ब्लड शुगर क्या करेगा, ग्लूकागॉन को स्टिमुलेट करेगा. ग्लूकागॉन जैसे ही बढ़ेगा क्या होगा, ग्लाइकोजन लाइसिस होगा, और ये ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन इनटू द ग्लूकोज और ये वापस ब्लड में आ जाएगा, राइट. सो ग्लूकागॉन इज द सेकेंड एंटागोनिस्ट हार्मोन ऑफ योर इंसुलिन. ये कब बढ़ता है, जब आपके ब्लड का शुगर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. जब आपको शुगर चाहिए, ग्लूकागॉन बढ़ेगा, स्टोर्ड ग्लाइकोजन शुगर दे देगा आपके ब्लड सर्कुलेशन. लेकिन दो स्टोरेज है, लिवर है और मसल है, तो मसल नहीं दे सकता, एक्सपोर्ट कर सकता, लिवर करेगा. सो ग्लूकागॉन इंक्रीज, ओके, व्हेन देयर इज अ लो ब्लड शुगर. ग्लूकागॉन कब बढ़ेगा, व्हेन देयर इज अ लो ब्लड शुगर. ओके, नाउ ये हो गया आपका किस तरह से रेगुलेशन होगा. अब हम लोग जाते हैं स्पेसिफिक पे, डायबिटीज मेलाइटस. ओके, सो डायबिटीज मेलाइटस आपको सबको पता है, लाइक इट इज अ हाई प्रोलॉन्ग टाइम के लिए ब्लड का अगर शुगर लेवल ज्यादा है, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हाई ब्लड शुगर अगर है, देन इट इज कॉल्ड द डायबिटीज मेलाइटस. प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए, प्रोलॉन्ग टाइम नहीं बोल सकते, टाइम इज फॉर लाइक 1 or 2 ईयर, प्रोलॉन्ग पीरियड लाइक 1 month 2 month, कम ही नहीं हो रहा है. बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन, देयर इज अ यूरिनेशन, इंक्रीज यूरिनेशन, जिसको हम लोग पॉली यूरिया बोलते हैं, ये हम लोगों का हो गया, राइट. सेकेंड, इंक्रीज थर्स्ट, प्यास बहुत लगती है, पॉलीडिप्सिया. एंड इंक्रीज हंगर, ज्यादा बार खाना पड़ता है, राइट, दैट इज कॉल्ड पॉलीफेजिया. बहुत बार, ओके, यूरिन के लिए जाना है, बहुत बार पानी पीना है, बहुत बार खाना खाना है. सो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, दिस 3P इज द साइन फॉर डायबिटीज मेलाइटस. ओके, इसमें के जो दो है, ये पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया, कहाँ मिलते हैं आपको, डायबिटीज इंसिपिडस. वो डिफरेंट एंटिटी, वो भी हम लोग बाद में देखने वाले हैं, राइट. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, क्या क्या मिलता है. अगर इस डायबिटीज को हम लोगों ने ट्रीट नहीं किया तो क्या होगा, इसी तरह चलता रहा, राइट, यूरिन के लिए जाता रहा, ज्यादा पानी पीते रहा, तो क्या हो जाएगा, इट कॉजेज मोस्ट इंपॉर्टेंटली डायबिटिक कीटो एसिडोसिस. क्या होगा इससे, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस. सो पर्सन लैंड अप इनटू द कंडीशन, अगर इसको आप ट्रीट नहीं करोगे तो पेशेंट कैन लैंड अप इनटू acute or you can say diabetic ketoacidosis, right. या हो सकता है patient can also land up into coma. Patient can also land up into coma. coma क्यों, क्योंकि इतना पॉलीयूरिया हो रहा है तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा ना उसको. पेशेंट कैन अंडरगो द डिहाइड्रेशन, या हो सकता है डेथ भी हो सकता है, राइट. सो क्यों हो रहा है कोमा, बिकॉज ऑफ द हाइपर ऑस्मोलैरिटी.
अब ये हाइपर ऑस्मोलैरिटी क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शुगर है यहाँ पर, राइट, सो वाटर कम हो गया यहाँ पर, राइट. सो इफ सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज ऑफ दिस ग्लूकोज बढ़ गया, राइट, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या होगा, वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, राइट. सो व्हाट हैपन, नॉर्मली अगर यहाँ समझ लो एक सेल है, इस सेल में वाटर है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर यहाँ पर जो वाटर है, और यहाँ पर अभी क्या हो गया, ब्लड में का आपको वाटर कम हो गया. सो वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ये सेल का वाटर कम हो रहा है और ये वाटर फिल्टर होके कहाँ से निकल रहा है, यूरिन में से. सो ये जो हाइपर ऑस्मोलैरिटी है बिकॉज ऑफ दिस ब्लड ग्लूकोज, इसकी वजह से पेशेंट कैन लैंड अप इनटू द कोमा और यू कैन से डिहाइड्रेशन. ये हो गया एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट. इसके और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, किडनी डिजीज हो सकता है, हार्ट के ऊपर जो वर्कलोड है वो धीरे 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 चेंज होते जाएगा. पेशेंट कैन ऑल्सो गेट हार्ट डिजीजेज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस ब्लड सर्कुलेशन हाइपर ऑस्मोलैरिटी. और एक जो आपको बात पता है, फूड, जिसको डायबिटिक फूड बोलते हैं. व्हाट इज दिस डायबिटिक फूड, वेरी इंपॉर्टेंट है. डायबिटिक फूड और यू कैन से डायबिटिक अल्सर बोलेंगे. व्हाट इज अल्सर, ये है आपका स्किन जिसको ये कंटिन्यू इपिथेलियम से कवर है. ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ इपिथेलियम, यहाँ के अगर सेल चले जाएंगे तो ये स्किन एक्सपोज हो जाएगा और इसको हम लोग बोलते हैं लैसरेशन और यू कैन से अल्सर. और इस अल्सर में डायरेक्ट इन्फेक्शन हो जाएगा, बाद में यहाँ वुंड हो जाएगा, राइट. सो ये अल्सर डायबिटिक की वजह से क्या होता है हमको देखना है. लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में क्या आ जाएगा, डायबिटिक फुट या डायबिटिक फूड अल्सर. होता क्या है, जब कोई भी आपको लगता है, जब आपको वुंड होता है, दिस वुंड एंटर इनटू द वुंड हीलिंग, हील हो जाता है आपका वुंड, क्या हो जाता है, हील हो जाता है. क्यों हील होता है, देयर इज अ फर्स्ट क्या होगा, इसका इन्फेक्शन जो है वो निकल जाएगा, राइट. उसके बाद धीरे 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 देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्युलेशन टिश्यू, जो रेड कलर का लेयर आता है ना आपको बाद में, जैसे जैसे आपका वुंड ठीक हो जाता है तो रेड कलर का एक लेयर दिखता है, वो ग्रैन्युलेशन टिश्यू फॉर्म होता है. आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द ग्रैन्युलेशन टिश्यू देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्किन ऑन दैट पर्टिकुलर. ये ब्रॉड में मैंने बताया आपको, इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, ग्रैन्युलेशन टिश्यू फॉर्म होगा और स्किन फॉर्म होगा, राइट. ओके, तो ये ग्रैन्युलेशन टिश्यू फॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डायबिटिक में क्या हो रहा है, देयर इज अ डिले इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्युलेशन टिश्यू. ग्रैन्युलेशन टिश्यू फॉर्म नहीं होता है या स्लोली होता है. ओके, क्यों, बिकॉज ऑफ द जो इन्फ्लामेटरी फेज है, कोई भी वुंड में या कोई भी आपको जब इंजरी हो जाती तब वुंड होता. इस वुंड में पहले तो whenever there is a sign of any injury there are signs of inflammation, right, जिसको बोलते हैं रूबर, ट्यूमर, कैलर और डॉलर, रेडनेस, स्वेलिंग, इंक्रीज टेम्परेचर एंड पेन. अब ये तो अल्सर हो गया, ओके, वहां पर तो वहां पर साइन ऑफ इन्फ्लामेशन हो जाएंगे, सारे सेल इन्फ्लामेटरी सेल वहां पर आ जाएंगे एंड दे ट्राई टू रिकवर दैट पर्टिकुलर वुंड. बट उसका एक पर्टिकुलर पीरियड है, राइट. उस डायबिटीज में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेटरी जो चेंजेस है ये धीरे धीरे प्रोलॉन्ग हो जाते हैं. ओके, सो इन्फ्लामेशन वाला जो स्टेप है वो फेज बढ़ जाएगा. सो इन्फ्लामेटरी फेज विल इंक्रीज. अब क्या होगा, अगर इन्फ्लामेशन बढ़ेगा, समझ लो ये आपका स्किन है और यहाँ पर स्वेलिंग है, बहुत बड़ा स्वेलिंग है बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन. ओके, अगर इन्फ्लामेशन बहुत टाइम रहेगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसका जो स्ट्रेंथ है, ये जो आपकी स्किन का जो स्ट्रेंथ है, धीरे धीरे ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये कम हो जाएगा. क्यों हो रहा है डायबिटिक फूड, डायबिटिक फूड इसलिए हो रहा है कि वुंड पहले इन्फ्लामेशन में जाएगा, इन्फ्लामेशन होने के बाद वहां पर इन्फ्लामेटरी सेल आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे ग्रैन्युलेशन होगा और न्यू स्किन फॉर्मेशन हो जाएगा. ये है आपका नॉर्मल वुंड हीलिंग. लेकिन क्या हो जाता है कि डायबिटिक में ये जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, वो स्वेलिंग बहुत देर तक रहेगी. अगर स्वेलिंग बहुत देर तक रहेगी तो क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर एरिया में जो टेंसाइल जो स्ट्रेंथ रहती टिश्यू की वो कम हो जाएगी. अगर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो बेसिकली जो ग्रैन्युलेशन टिश्यू फॉर्म होता है, राइट, जो ग्रैन्युलेशन रेड कलर का टिश्यू फॉर्म होता है वो धीरे धीरे स्लोली होगा या लेस फॉर्म ही नहीं होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट वुंड हील ही नहीं हो रहा है, राइट.
वुंड को हील करने के लिए पहले इन्फ्लामेशन होना है, इन्फ्लामेशन के बाद ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन होना है, जो वुंड को आपकी स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ देता है, बाद में ठीक करके और उसके ऊपर स्किन आ जाएगा। लेकिन अगर इन्फ्लामेशन गया ही नहीं, ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्म ही नहीं हो रहा है, तो वुंड हील होगा क्या? नहीं होगा। सो दिस इज व्हाई देयर इज अ फूड डायबिटिक फूड। ये एक शॉर्ट में बताया इसको, इसका बहुत बड़ा लाइक देयर इज अ ह्यूज लिटरेचर ऑन दिस पर्टिकुलर वुंड हीलिंग। ये अलग से लोग इसका ब्रांच है, इसका अलग से स्पेशलिटी रहता है, कैसे ट्रीट करना है, क्यों होता है करके। मैंने इन शॉर्ट बताया आपको। कोई भी वुंड सबसे पहले क्या होगा, वहाँ से इन्फेक्शन हम लोग एंटीबायोटिक से निकाल देंगे, उसके बाद वहाँ क्या होगा, थोड़ा इन्फ्लामेटरी रिएक्शन आएगा कुछ देर के लिए, धीरे 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 इन्फ्लामेटरी रिएक्शन चला जाएगा, ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्म होगा और उसके ऊपर आपका वुंड हील हो जाएगा। यहाँ हो क्या रहा है, बिकॉज ऑफ द बेसिकली इंक्रीज जो आपका ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, बेसिकली इन्फ्लामेटरी प्रोसेस रुका हुआ है, प्रोलॉन्ग है, बहुत देर तक है। देयर इज नो ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन एंड देयर इज नो वुंड हीलिंग। और क्या होता है डायबिटीज में, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मेनली जब हम लोग बोलते हैं जैसे आई में रेटिनोपैथी होती है, राइट। रेटिनोपैथी है ना, देयर इज अ पैथोलॉजी इन रेटिना, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसके भी फेजेस है, लाइक फेज 1, फेज 2, फेज 2, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर भी बोलते हैं। जितने ज़्यादा डायबिटीज़ की वजह से रेटिना में प्रॉब्लम है, उतना ज़्यादा सीवियर है ये, राइट। माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। रेटिनोपैथी मीन इन आईज देयर आर लेयर, ओके। सबसे बाहर का स्क्लेरा, उसके बाद कोरोइड, और सबसे अंदर का जो ट्रांसपेरेंट है जो रेटिना। रेटिना जो आपके रॉड्स एंड कर्व नर्व फाइबर से जो बना हुआ है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसरी सेल जो आपके आईज में है, जो आपकी विजन के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर उसी रेटिनल लेयर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज ऑफ द डायबिटीज, तो आपका विजन क्या हो जाएगा, चला जाएगा, राइट। सो दिस इज मोस्ट ड्रेडेड डिजीज, राइट। आप इसको इतना भी लाइटली नहीं ले सकते, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, what are things we should be see in case of diabetes mellitus, right। so ये जो हम लोग इटियोपैथोजेनेसिस देख रहे हैं, क्या हो रहा है डायबिटीज में, इसमें एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट है। आई चेंजेस हो गए, वुंड हीलिंग हो गई आपकी, राइट। और क्या है, बेसिकली डायबिटिक फुट का क्यों इतना डिले हो रहा है, फुट में क्यों होता है। हम लोग बोलते हैं ना बहुत बार डायबिटिक फुट, वुंड तो कहीं पर भी हो सकता है। फुट इज द मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। अब हम लोग खड़े हैं, ओके, खड़े हैं, तो सबसे डिपेंडेंट पार्ट कौन सा हो गया, फुट हो गया। मैक्सिमम वर्क है वहां पर, राइट। पूरा बॉडी का जो फ्लो है वो हमारा ऊपर से नीचे आना आसान है, लेकिन नीचे से ब्लड फ्लो ऊपर आना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, राइट। सो दैट इज व्हाई वुंड एट द फुट, जो डिपेंडेंट पार्ट की वजह से हीलिंग होने के लिए और टाइम लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के वुंड जल्दी हो जाते हैं, राइट। डायबिटीज की वजह से अगर आपके हाथ के वुंड को अगर 10 दिन लग रहे हैं, तो आपके फुट को कम से कम 1 महीना लगेगा। डिपेंडेंट पार्ट है, क्यों होता है, व्हाट इज द इटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस बिहाइंड द डायबिटीज मेलाइटस, जिसको हम लोग इटियोपैथोजेनेसिस बोलते हैं, राइट। सबसे पहला रीजन जो पैंक्रियाज है, ओके। सो पैंक्रियाज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ इंसुलिन, पहला रीजन। इसीलिए जो आपके खाने के बाद जो आपके ब्लड डाइजेशन के बाद सर्कुलेशन में जो आपका ग्लूकोज जाएगा, राइट, इधर जाएगा, ये ग्लूकोज को ले जाने के लिए सेल के पास जो इंसुलिन हार्मोन जो कैरियर करके काम कर रहा है, वही अगर नहीं होगा तो आपका ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ये पहला रीजन है, राइट। क्या रीजन है, नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ इंसुलिन, ओके। सेकेंड, सेल और बॉडी, ओके, आपके बॉडी के जो सेल है, सेकेंड रीजन, आपके बॉडी के सेल दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इंसुलिन, यानी इंसुलिन तैयार हो रहा है लेकिन आपके बॉडी के सेल उसको रिएक्ट नहीं कर रहे, या आपके बॉडी को सेल उससे बेसिकली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, राइट। आपके बॉडी के सेल अगर इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो इंसुलिन कैसे लेके जाएगा उनके पास ग्लूकोज को। तो दो चीजें, एक इंसुलिन ही नहीं है इसलिए ग्लूकोज नहीं जा रहा है सेल के पास, इसलिए ग्लूकोज नहीं जा रहा है सेल के पास, पहली चीज, ओके। दूसरा, सेल इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इंसुलिन है वो ग्लूकोज को ले जाना चाहता है, बट सेल डजंट रिस्पॉन्ड टू द इंसुलिन। तो ये हो गए रीजन इटियोपैथोजेनेसिस में, ओके। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर आर ऑलमोस्ट 3 टाइप, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल सी द टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। हाउ मेनी टाइप, 3 टाइप्स।
ओके, पहला है टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस. ओके, सेकेंड जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, और तीसरा तो आपको पता है राइट, डायबिटीज इंसिपिडस. ओके, अभी तक हमको सिर्फ डायबिटीज मेलाइटस पता था, अभी देखो एक टाइप 1 है, एक टाइप 2 है, दूसरा जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस. अब जैसे ही जेस्टेशन वर्ड आता तो आपको क्या याद आना चाहिए, प्रेगनेंसी, जहां हम लोग जेस्टेशनल पीरियड काउंट करते, तो दिस इज माइट बी इन प्रेगनेंसी. देखते हैं हम लोग बाद में. टाइप 1, टाइप 2, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, और तीसरा डायबिटीज इंसिपिडस. ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया राइट. सो यूजुअली ब्रॉडली देयर आर लाइक 3 to 4, लेकिन हम लोग 3 बोलते हैं. एक टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, दूसरा है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, और तीसरा है डायबिटीज इंसिपिडस. पहले हम लोग देखते हैं टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस है. देखो डायबिटीज क्यों हो रहा है, एक तो आपका पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसीलिए सेल को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, और वो ग्लूकोज आपका पूरा ब्लड वेसल में जमा हो रहा है, इसलिए ब्लड शुगर ज्यादा है. दूसरा, इंसुलिन है लेकिन आपके बॉडी के सेल उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे. ओके, ये दो रीजन है. अब हम लोग देखते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस. इन टाइप 1 पैंक्रियाज फेल हो जाएगा, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करेगा. अब सिंपल है, अगर इंसुलिन नहीं है तो इनको ले जाने वाला कैरियर ही नहीं है, तो सेल को मिलेगा क्या, नहीं. तो ये हो गया आपका टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस. अब सिंपल देखो ट्रीटमेंट कैसे करते. अगर आपके पास इंसुलिन नहीं है, इसलिए अगर डायबिटीज है, तो आप क्या दोगे, इंसुलिन दोगे पेशेंट को. क्या दोगे आपको, पेशेंट को इंसुलिन. दूसरी, हम लोग पहले इसको देख लेते टाइप 1 में. सेकेंड, दैट इज वाई इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस. क्यों है, इंसुलिन नहीं है, इसलिए इंसुलिन चाहिए पेशेंट को, तो पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या है, इंसुलिन. क्यों होता है, कॉज पता नहीं, वी डोंट नो, स्टिल नाउ वी डोंट नो. कुछ भी हो सकता है ये सेल फंक्शनल नहीं है, या कुछ यहाँ पर सेल का कोई कैंसर है टेल ऑफ पैंक्रियाज का, वी डोंट नो. ओके, अप टिल नाउ हमें अभी भी पता नहीं व्हाट आर द कॉजेस ऑफ दिस टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, अननोन है. ओके, देन हाउ विल यू ट्रीट, बहुत सिंपल है. इंसुलिन नहीं है तो इंसुलिन दे दो पेशेंट को, इंसुलिन पेशेंट बाहर से लेगा, तो ये उसका ट्रीटमेंट है. ट्रीटमेंट भी लिख देते, ट्रीटमेंट इज इंसुलिन. ओके, देन which is common, type 1 और type 2. okay, so type 1 जो है, जो आपको पेशेंट दिखते हैं, they are like 10 to 20%. हमको लगता है सारे डायबिटीज यही वाले हैं, बट ये बहुत कम है. टाइप 2 वाले बहुत ज्यादा है राइट, दे आर मोर. ओके, नाउ कैसे, हमको क्यों लग रहा है कि टाइप 1 वाले ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल अगर आप फिगर देखोगे तो टाइप 1 इज ओनली 10 to 20% एंड टाइप 2 इज लाइक 80 to 90%, इतने ज्यादा है. फिर भी अगर मैंने आपको पूछा कि डायबिटीज कौन सा ज्यादा है, तो आप क्या बोले, बहुत सारे लोग सर इंसुलिन लेते रहते तो टाइप 1 ही कॉमन है. नहीं, व्हाई यू फील दैट टाइप 1 इज कॉमन, बिकॉज सिम्टम्स जो है, जो भी डिजीज के सिम्टम्स है, वो टाइप 1 में बहुत फास्ट डेवलप होते हैं. इट इज वेरी फास्ट डेवलप. कोई भी डिजीज के अगर आपको साइन सिम्टम्स दिखेंगे तो आपको लगेगा ना ये डिजीज ज्यादा कॉमन है. सो टाइप 1 के सिम्टम्स बहुत फास्ट डेवलप होते हैं राइट. हियर इन केस ऑफ टाइप 2 यहाँ पर बहुत स्लोली सिम्टम डेवलप होते हैं, कभी कभी तो दिखते ही नहीं है, दे आर यूजुअली एब्सेंट और यू कैन नॉट रियली सी. इसीलिए हमको लगता है कि ये कॉमन नहीं. लेकिन एग्जाम में अगर पूछेंगे विच इज मोर कॉमन डायबिटीज, इट इज द टाइप 2. यही प्रॉब्लम है, हम लोग थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना है राइट. सो नाउ वी विल गो फॉर टाइप 2. अब टाइप 1 में इंसुलिन नहीं, इसलिए इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है, इंसुलिन दो पेशेंट को और सिम्टम्स जल्दी आ जाते. अब ये टाइप 2 है क्या बेसिकली. सो दिस टाइप 2 बिगिन विथ इंसुलिन रेजिस्टेंट. यहां पर इंसुलिन है, इंसुलिन इज प्रेजेंट, लेकिन ये जो सेल है ये रेजिस्टेंट डेवलप करते हैं.
इंसुलिन है लेकिन उससे रेजिस्टेंट डेवलप करते हैं. सो हियर देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंट. बॉडी सेल रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, राइट. बॉडी सेल रिस्पॉन्ड नहीं करते, ये हो गया रेजिस्टेंट, राइट. सो इट इज लाइक टाइप 1 कैसा, यानी समझ लो भूख लगी है, खाना नहीं है आपके पास, ये हो गया आपका टाइप 1. खाना एब्सेंट है, जैसे इंसुलिन एब्सेंट है. यहां पर भूख भी लगी है, खाना भी है आपके पास, राइट. बट आपको जो खाना मिल रहा है वो नहीं चाहिए, आपको कुछ अलग चाहिए, राइट. ये हो गया टाइप 2 डायबिटीज. ये बहुत कॉमन है, राइट. बहुत बार मम्मी कुछ बनाती है, राइट, लेकिन हमें चाहिए नहीं हो, राइट, बिकॉज वी वांट समथिंग न्यू. यही प्रॉब्लम है टाइप 2 का. इंसुलिन है बट बॉडी के सेल को वो खाना नहीं है, बॉडी के सेल को वो नहीं चाहिए. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज मेलिटस. इसीलिए अब ये इंसुलिन, अगर इसको इंसुलिन चाहिए ही नहीं तो आप इसको इंसुलिन डिपेंडेंट बोलोगे क्या? नहीं, इसको बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस. क्या बोलोगे इसको आप? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, राइट. और एक है ये जो डायबिटीज है, इसको हम लोग कभी कभी जुवेनाइल, बचपन से हो सकता है ऑनसेट डायबिटीज, और इसको एडल्ट ऑनसेट बोलते हैं. लेकिन आई डोंट वांट यू टू रिमेंबर दिस वन, थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, राइट. धीरे 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 पहले रेजिस्टेंट डेवलप होगा, राइट. उसके बाद अगर बीटा सेल इंसुलिन तैयार कर रहे हैं और ये यूज ही नहीं हो रहा, तो धीरे 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 ये इंसुलिन प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा. और हम जब चेक करते हैं तो हमको लगता है कि इंसुलिन प्रोडक्शन बंद है, तो हमें लगता है कि लैक ऑफ इंसुलिन की वजह से प्रॉब्लम है. नहीं, पहले इंसुलिन प्रोड्यूस होता था, बाद में इंसुलिन प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो गया. ऐसे ही होता है ना, रोज 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 आपके लिए खाना बनाएंगे और आप खाओगे ही नहीं, ऑटोमेटिकली घर में खाना तो है लेकिन आपके लिए बाद में खाना ही नहीं बनेगा, राइट. तो ये है क्योंकि आपने खाना ही बंद कर दिया है, बट नहीं, यहाँ प्रॉब्लम अलग है. ओके, सो दिस इज द डिफरेंट. सो पहले रेजिस्टेंट होगा, उसके बाद प्रोडक्शन कम हो जाएगा, राइट. क्यों होता है नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलिटस? क्या कॉज है इसका? कॉज मैंने क्या बताया आपको? पता नहीं, अननोन. लेकिन इसका कॉज पता है हमें. क्या कॉज होगा नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलिटस का? है फिर भी नहीं खाना. कौन लोग हैं ऐसे जो मिलता है फिर भी नहीं खाते? ओबेसिटी जिसमें ज़्यादा है, जिनका लाइफ स्टाइल सीडेंटरी है, कुछ नहीं करना है, राइट. इस पर्सन में आपको कौन सा डिजीज मिलने वाला है? टाइप 2 डायबिटीज मिला. आई एम नॉट सेइंग एवरी ओबेस पर्सन और एवरी पर्सन विद सीडेंटरी जॉब और लाइफस्टाइल उनको ये रहेगा करके. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल और एनोलॉजी. ओके, इट्स नॉट पर्टिकुलर टू कि ओबेस पर्सन कोई है करके. लेकिन ये किस में मिलेगा? ओबेस पर्सन में और सीडेंटरी. और जरूरी भी है ना बताना, राइट. अगर आप सीडेंटरी लाइफ जी रहे हो, बेसिकली यू आर डूइंग हार्म टू योर बॉडी. यू शुडंट लिव द सीडेंटरी लाइफस्टाइल. गलत है ये, राइट. आपको सीडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं जीनी चाहिए, राइट. इसीलिए आपको ओबेसिटी प्रॉब्लम कम हो जाए, किसी का भी हो गया, राइट. सो दैट इज व्हाई इट इज मोर कॉमन. मोर कॉमन है पर इसके साइन सिम्टम्स दिखते नहीं है. ओके, ये एब्सेंट ही रहते हैं, राइट. सो दिस इज. अब ये इंसुलिन पे डिपेंड नहीं, सो यू कैन मैनेज विदाउट इंसुलिन ऑल्सो. इंसुलिन यूज कर सकते हैं बट विदाउट इंसुलिन. इस इंसुलिन को रेजिस्टेंट है तो वी कैन यूज अनदर फॉर्म ऑफ इंसुलिन. या इंसुलिन करो या विदाउट इंसुलिन हम लोग इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. तो ये हो गया आपके टाइप 1 टाइप 2. एक और हम लोगों ने बोला था जेस्टेशनल. ओके, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस प्रेग्नेंट वुमन को होगा, राइट. प्रेग्नेंट वुमन को जो होने वाला डायबिटीज है, जिनमें पहले विदाउट प्रायर हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज. ओके, प्रेगनेंसी में ये डेवलप होता है नॉर्मली, इसको इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं जेस्टेशनल. और जैसे ही डिलीवरी हो जाएगी, प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी, तो धीरे 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 ये जा सकता है. तो इसको हम लोग बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, यूजुअली इन प्रेग्नेंट वुमन विदाउट. पहले हिस्ट्री नहीं चाहिए. अगर पहले हिस्ट्री है तो हम लोग इसको जेस्टेशनल नहीं बोलेंगे, डायबिटीज मेलिटस बोलेंगे, राइट. सो ये हो गया आपका जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, राइट. क्या कर सकते हैं? डाइट हेल्दी होना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए, राइट. डाइट, एक्सरसाइज, यही है सारे डिजीज में, यही होना इंपॉर्टेंट है. डाइट अच्छा होना है, एक्सरसाइज अच्छी चाहिए, राइट. आपका बॉडी वेट कंट्रोल में चाहिए, आपको कोई बैड हैबिट नहीं चाहिए, स्मोकिंग नहीं चाहिए, अल्कोहल ड्रिंकिंग नहीं चाहिए. ये सब आपको इंपॉर्टेंट है हर इसमें, राइट. तो ये क्या हो जाएगा, ये सब अगर ठीक रहेगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, डाइट एक्सरसाइज अगर ठीक रहेगी, नॉर्मल बॉडी वेट रहे. अगर बॉडी वेट अगर बढ़ जाएगा,
जब भी बॉडी वेट बढ़ जाता है तो हीमोडाइल्यूशन हो जाता है, राइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट हीमोडाइल्यूशन द ऑस्मोलरिटी विल चेंजेस एंड पेशेंट विल फील द चेंजेस ऑफ डायबिटिक। ओके, तो धीरे धीरे हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। तो ये रिजॉल्व हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, राइट। तीसरा है डायबिटीज इंसिपिडस। ओके, क्यों होता है? एंटी डायरेटिक हार्मोन, लैक ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, राइट। सो क्या नाम है इसका? वैसोप्रेसिन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन? एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता? आपका जो यूरिन बाहर निकलता है, राइट, आपके बॉडी में से फिल्टर होकर बॉडी फ्लूइड में, एंटी डायरेटिक हार्मोन डायूरेसिस कम कर देगा। एंटी डायरेटिक हार्मोन का काम क्या है कि यूरिन है, जिसको हम लोग डायूरेसिस बोलते हैं, ये यूरिन जो फ्लो है या यूरिन आउटपुट है वो कम करना है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही रखना। ये एंटी डायरेटिक का, तो आपके बॉडी में वाटर बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर ये हार्मोन नहीं होगा या इसकी कमी होगी, लैक होगा, ओके, वैसोप्रेसिन जो हार्मोन है, तो क्या हो जाएगा? बेसिकली लैक ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, ओके, क्या होगा? देयर इज वॉल्यूम ऑफ जो है, ओके, यूरिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लो बढ़ जाएगा। इसीलिए तो होता है ना, मैक्सिमम टाइम में यूरिनेशन के लिए जा रहा है, हमको लगता है डायबिटीज है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन? डायबिटीज इंसिपिडस। ओके, सो एंटी डायरेटिक हार्मोन अगर कम है तो यूरिन बहुत बार बाहर जाएगा, राइट, पॉलीयूरिया बोल सकते। इट कैन से इट्स अ एडीएच डेफिशिएंट पॉलीयूरिया, यू कैन आल्सो से इट इज एडीएच। तो ये हो गए तीनों के तीनों टाइप ऑफ डायबिटिक। ओके, अब हम लोग देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। वी विल सी द साइन एंड सिम्टम्स। ओके, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स? बहुत ज्यादा डिटेल की जरूरत ही नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया, वही साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे ना, राइट। सो व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस? क्लिनिकल फीचर जिसको हम लोग बोलते हैं, साइन यानी डॉक्टर कैन नोटेड एंड सिम्टम्स मीन्स इन द पेशेंट लैंग्वेज। ओके, सो साइन एंड सिम्टम्स कौन से है? पॉलीयूरिया टाइप हो गया। ओके, सो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। यूरिया, डिप्सिया एंड फेजिया, ये हो गया आपके साइन एंड सिम्टम ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, राइट। सो ये जो पॉलीडिप्सिया है और ये पॉलीफेजिया है, इंक्रीज थर्स्ट, इंक्रीज हंगर, थर्स्ट एंड हंगर, these are the property of your brain control करता है आपका ये, right? So you can say these are central nervous system symptoms। ये कौन से symptoms है? central के symptoms है, thirst increase होना और hunger, lethargy भी हो सकता है। okay, this polyuria, ये that is the peripheral nervous system, okay, systemic पॉलीयूरिया। पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया इज द सेंट्रल। ये हो गया आपके साइन एंड सिम्टम्स। और क्या हो सकता है, राइट? सो आईज में डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, बिकॉज ऑफ दैट विजन कम नहीं बोलना, कम विजन यानी रिफ्रैक्टिव एरर हो जाएगा, ब्लरिंग ऑफ विजन बोल सकते हैं इसको, ब्लरिंग ऑफ विजन यानी ये रेटिना है, यहां अगर ब्लड है तो इतना दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, इतना ब्लर दिखेगा, तो इसको बोलते हैं ब्लरिंग ऑफ विजन। वी कैन डायग्नोज विद द हेल्प ऑफ विजुअल फील्ड एग्जामिनेशन, जिसको हम लोग स्कोटोमा दिखेगा इसमें। स्कोटोमा मीन्स डार्क, उतना पार्ट नहीं दिखेगा, फेस ब्लर दिखेगा, राइट। यू कैन आस्क योर पेशेंट की आपको ये पूरा हाथ दिख रहा है, उसका फेस दिख रहा है क्या, तो बोलेगा नहीं, कुछ डॉट्स दिख रहे हैं, थोड़ा सा ब्लरिंग दिख रहा है, रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से आपको कम दिखेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? ब्लरिंग ऑफ विजन बिकॉज ऑफ द डायबिटिक रेटिनोपैथी। बहुत डिफरेंस रहता है, राइट, इन बिटवीन द साइन एंड सिम्टम्स। तो ये हो गया आपके साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस है। ओके, सो सेंट्रल वाले, सिस्टमिक वाले। ओके, अगर आप ट्रीट ही नहीं करोगे तो धीरे 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 क्या हो जाएगा? वेट लॉस हो जाएगा। अब आप तो बोलोगे वेट लॉस क्यों हो रहा है, राइट? क्योंकि यूरिनेशन हो रहा है, सेल और टिश्यू का डेथ हो रहा है,
उनको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, फटीगेबिलिटी हो जाएगा, धीरे धीरे पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कोमा में जा सकता है, राइट। तो ये हो गया वेट लॉस, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ डायबिटीज। पॉलीयूरिया यानी कितना पॉलीयूरिया, 1.2 लीटर यूरिन तैयार होता है आपका, राइट, पर 24 आवर। पॉलीयूरिया इज मोर देन 2.5 लीटर टू 3 लीटर, इतना अगर है तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, पॉलीयूरिया इन केस ऑफ 24 आवर। पॉलीडिप से आपको पता है इंक्रीज थर्स्ट, थर्स्ट क्यों होता है, यू ऑलरेडी नो, जितना ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाएंगे उतना आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑस्मोलरिटी चेंज हो रही है, आपको थर्स्ट होगा, राइट। बेसिकली क्या हो रहा है, ब्लड में का जो वॉल्यूम है वो जैसे ही कम हो जाता है, जैसे हाइपोवॉल्यूमिया हो गया, आपको देखा ना आपने, उल्टी होने के बाद जब आप डिहाइड्रेट हो जाते हो जब, तो क्या हो जाता है, आपका थर्स्ट बढ़ जाता है। सो हाइपोवॉल्यूमिया क्यों हो रहा है कि यूरिन बाहर जा रहा है, ब्लड फिल्टर होके बहुत पानी बाहर जा रहा है, राइट, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो आपकी थर्स्ट ज़्यादा हो जाएगी, राइट। सो पॉलीडिप्सिया क्यों, बिकॉज इंक्रीज थर्स्ट की, बिकॉज ऑस्मोलरिटी में क्या हो गया, आपका जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है सेल के बाहर का, ओके, सो चेंज इन ऑस्मोलरिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, हाइपोवॉल्यूमिया हो रहा है। पॉलीफेजिया, ये पॉलीफेजिया क्यों, एक तो सबसे पहले आपका जो ग्लूकोज है वो सेल को नहीं मिल रहा है, सेल को नहीं मिल रहा है तो सेल का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, और आपके ब्रेन को एक रिस्पॉन्स जा रहा है कि हमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, ब्रेन विल डू द फंक्शन, आपको खाने के लिए भेजेगा सैटाइटरी सेंटर स्टिमुलेट करके। तो हम लोग डिटेल में अगर आप देखोगे पॉलीफेजिया क्यों होता है, देयर आर सम सिक्रीशन ऑफ केमिकल्स, उस केमिकल का नाम है गेरलिन, गेरलिन, देयर इज वन मोर लेप्टिन, this ghrelin and leptin secretion, okay, excessive hunger जब होता है, बहुत ज्यादा भूख लगती है, राइट, सो लेप्टिन एंड ghrelin secretion is very important excessive hunger में, राइट। क्या होता है बेसिकली, इनका कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ओके। सो जब भी आप कुछ खाते हो food, there is one enzyme cholecystokinin CCK release during the food absorption, इसका काम है, ये जो कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज होता है जब आप फूड खाते हो और डाइजेस्ट जब होता है, राइट, ये क्या करता है, आपके हंगर को सप्रेस कर देता है, क्या कर देता है, आपके हंगर को सप्रेस कर देता है, राइट, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये गेरलिन एंड लेप्टिन जो है, ओके, ये जब बढ़ेगा तब आपको हंगर ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। दीज आर सम केमिकल्स और हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलीफेजिया, राइट। सो और एक है, जैसे बोलते हैं लोग कि ग्लूकागॉन, अगर ये ग्लूकागॉन का लेवल अगर बढ़ गया, ये सारी स्टडीज है, ग्लूकागॉन अगर बढ़ रहा है, ओके, ग्लूकागॉन कब बढ़ेगा, जब शुगर नहीं मिल रहा है आपके इसको, बेसिकली किसको, सेल को, तो ग्लूकागॉन बढ़ता है। तो ऐसा बोलते हैं कि इफ देयर इज इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ द ग्लूकागॉन, इट्स ऑल्सो स्टिमुलेट द हंगर, ग्लूकागॉन इंक्रीज अगर हो जाएगा तो हंगर स्टिमुलेट हो जाएगा। सो ग्लूकागॉन इंक्रीज, हंगर स्टिमुलेशन। कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करेगा, आपके हंगर को डिप्रेस कर देगा, वो नहीं रहेगा तो हंगर हो सकता है, राइट। और कोलिसिस्टोकाइनिन कब रिलीज होता, बेसिकली जब आप खाना खाते हो, जब वो डाइजेस्ट होना चालू हो जाता, कोलिसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियोजाइमिन, ओके, तो डाइजेशन के वक्त, एब्जॉर्प्शन के वक्त ये आपका हंगर कम कर देगा, राइट। तो ये हो गया आपका पॉलीफेजिया, राइट। ब्लरिंग ऑफ विजन है, डिमिनिशन ऑफ विजन है, फटीगेबिलिटी है, आपको हीलिंग टाइम आपके बॉडी के वुंड का कम हो जाता है, स्किन बहुत ज़्यादा इची हो जाता है, इचिंग, ज़्यादा इचिंग हो जाता है, राइट। सो ये हो गया आपके सारे साइन एंड सिम्टम्स है, राइट। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी व्हाट आर द लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन एंड हाउ विल यू कंट्रोल द डायबिटीज mellitus, okay.